अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। चलिए जी, कार्गो पहुंच चुका है नेटफ्लिक्स पर। वेलकम टू बोल बेबी बोल, श्वेता त्रिपाठी, विक्रांत मासी एंड आरती कलश। मुबारक हो। Thank you. Thank you. Thank फर्स्ट क्वेश्चन, और ये इस यूनिवर्स के फैंस के लिए है जो विक्रांत और श्वेता के यूनिवर्स के फैंस हैं, कि भाई इंतजार तो है इस जोड़ी का, लेकिन इन द मीन टाइम एक पैरेलल यूनिवर्स में आप दोनों एक साथ आ गए हैं। ओ माय गॉड, दिस इज सो एक्साइटिंग। मुझे बताओ, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम आप दोनों की कास्टिंग एक दूसरे के सामने हुई? श्वेता, कुड यू टेल मी दिस? डू यू रिमेंबर दिस? So this was for Mirzapur, which is one of the closest projects to my heart. And जब मुझे पता चला था कि बबलू पंडित के कैरेक्टर के लिए first there were other names, and those names are also very exciting, and I was very happy. In fact, जो स्वीटी that time गुड्डू के बहुत सारे options थे, and a few options were also very scary. तो मैं श्रेया को बस हंस के बोलती थी कि भाई I am sorted because whoever's playing Bablu, because he's a good actor. Then I got to know that Vikrant Massey is playing. तब तक मैंने विक्रांत का कोई भी काम नहीं देखा था. So then हमारी रीडिंग थी एक्सेल के ऑफिस में, and I thought कि यार अब तो मतलब I'm meeting him, I should see some of his work. So I saw Death in the Gunj and Lipstick back to back. और मेरी थोड़ी फट गई क्योंकि I was like, ये तो बहुत सही एक्टर है यार, मतलब इसके सामने तो ऐसे नहीं जा सकते, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा. So, and I met him, and he, in fact, I remember what he was wearing also, एकदम ऐसा black, I think Fab India का कुर्ता पहन के आए थे, बहुत चश्मे लगा के, very वो पूरी intellectual look के साथ. तो मुझे लगा यार पता नहीं, तो मजा तो आएगा, पर I don't know ये किस टाइप का एक्टर है, कैसा इंसान है. But obviously, as luck would have it, मिर्जापुर के टाइम ही then Cargo happened, and if there is a project that he's a part of, at least I know that I'm in safe hands, and if he said yes to a project, there must be a reason. Which brings me to Aarti. Aarti, at this point, I want to ask you कि ये जो जोड़ी थी, क्या इनके काम को देखकर तुमने इन दोनों को कास्ट किया? Tell me the process of casting for these two extraterrestrials, if you may. Can I also please, Aarti, what do you call us? वो भी बता दो. Aarti just last night compared us to Madhuri Dixit and Anil Kapoor. They're back to back hits for Indian cinema because they're such a love story. I think all the comments on our trailers, everybody were rooting for them so much. They want them to always be together on screen. So I felt that अभी हमारी इस जनरेशन के माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर यहाँ पे मेरे सामने बैठे हैं. So बात करने का मौका नहीं दिया विक्रांत को, so I'm going to bring him in at this point. नहीं यार, मेरी तारीफ हो रही है, मैं सुनना चाहता हूँ. मेरे बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं. Actually it brings me to a fab question कि ये जो idea of a sci-fi film, मुझे याद है growing up, and because you said Anil Kapoor, our idea of sci-fi for the 80s generation is Mr. India. Mr. India, and Mr. India है ना. What are your memories? Because I think मुझे जानना है कि did you grow up on the same films that I did? Because I want to get inside your mind a little bit. तुम्हारे बचपन में Mr. India का क्या impact था, बताओ. No, I too loved Mr. India. I mean, I am a huge Mr. India fan, so that's why, it's like the only sci-fi film we as children had access to, like from Bollywood. So in a way, so I had I watched these films, but also I was also surrounded with a lot of books. I used to read up a lot of science fiction. I was also used to also read up a lot of mythology growing up. A lot of our Amarantha Kathas. So I used to also, and in my school now, we used to have a lot of story writing competition, and I used to fake like all these fantasy stories. I used to win also. So I used to feel even more happier. Okay, then let's write. So that was how तो मैं जब मैं बड़ी हुई तो फिर इंस्टेड ऑफ जैसे जो हॉलीवुड के साइंस फिक्शन के जो राइटर्स होते हैं, जैसे फिलिप के डिक, जिनके ऊपर माइनॉरिटी रिपोर्ट्स बनी या ब्लेड रनर बनी, उनको छोड़ के मैं ईस्ट के जैसे जो चाइना के साइंस फिक्शन स्टोरीज है वो सब पढ़ने लगी, और इन जनरल मिथ्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पढ़ने लगी. तो मुझे काफी अच्छा लगा बिकॉज कल्चरली हम लोग एक्चुअली चाइना और अफ्रीका से क्लोजर है, हमारे जो वैल्यूज है क्लोजर है. देन आई स्टार्टेड वंडरिंग दैट व्हाई इन आवर कंटेम्पररी स्टोरी टेलिंग हम लोग क्यों मैजिकल स्टोरीज नहीं बोल पा रहे हैं. सो देन
so and that's when मैं खुद की स्टोरीज देखी तो मैंने देखा कि मैं भी एक्चुअली वेस्ट के साईफाई कॉपी कर रही हूँ अपने जो पुराने स्क्रिप्ट्स में जो ट्राई करी थी. तो when I thought that when my first film will be there, it will be truly Indian. Like you can tell कि इंडिया के बाहर कहीं और बन ही नहीं सकती थी. So that was something that I wanted to make sure when I was making Cargo. And I think to a certain extent we have been successful. Like the backdrop of the film, it belongs to the subcontinent. So You know, Vikrant, I want to bring you in at this point. जब तुमने ये कहानी पढ़ी या तुम्हें सुनाई गई, do you remember your first like response? क्या लगा और क्या अच्छा लगा इस कहानी के बारे में बता. The cast, मैंने कहानी पढ़ी बहुत या first thing first कि मतलब कमाल, श्वेता जी हैं कमाल. But actually, to be very honest, that is partly true because when Shweta told me about Cargo, Aarti had already spoken to Shweta and she was already on board. And when she told me, okay, I really want you to, read the script or meet the director because this is the film that I'm doing. Would you be interested? I said, "Chalo, milke dekhte hain." And obviously, I rely on her instincts and her, her ability to judge, and she adapts very, very well towards the surroundings. तो मैंने कहा था कि ठीक है यार, अगर ये लड़की कर रही है तो कुछ ना कुछ ढंग का ही होगा, तो एक काम करके मिलके देखते हैं डायरेक्टर से. And then when I met her, we met in a cafe. I keep forgetting the name of that place. Somewhere in Bandra we met. Saltwater Cafe. And it just took me at least 20 minutes. She started talking about the film. एक तो मैं इनसे मिला. And her personality completely got me, I was floored by her personality because she was so coy and yet confident at the same time. And then I was like, यार ये इसके साथ तो काम करना पड़ेगा. मैंने स्क्रिप्ट तो बाद में पढ़ी. And things only kept getting better, the moment she started telling me about what the world was and what she was thinking about. The very fact that when, someone is so confidently sitting in front of you and narrating something so abstract or unheard of, I was like, yeah, I think isko pata hai ye kya karegi aur ye jo banayegi अच्छा ही बनाएगी. And then I was on board even before I read the script. That's fantastic. मुझे आपके नाम जो है कैरेक्टर्स के वो बेहद पसंद है. चाहे वो आपकी शॉर्ट फिल्म में हो. पहले इनसे ये पूछिए युविश का कहाँ से आता है नाम? मैं वही अगर आप टाइम मशीन देखेंगे, which is Aarti's short before this one, तो वहां पर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है. लेकिन यहाँ पर जो किरदार है प्रहस्ता और युविष्का, ये कहाँ से नाम चुना? No, तो पहले हमने नॉर्मल नाम ही रखा था. फिर जब रिहर्सल कर रहे थे तो एक्चुअली श्वेता विक्रांत. तो जब हम रिहर्सल कर रहे थे और उसका भी पहले नाम, राइट? हाँ वो श्वेता को नाम श्वेता था. हाँ, श्वेता को वो करने के लिए मैंने कैरेक्टर नाम श्वेता रखा था. एंड विच वाज एक्चुअली ट्रू. मैं श्वेता को सोच के ही मैंने वो कैरेक्टर लिखा था. तो वो जब वो इनहेरेंट उसका है वो कैरेक्टर वैसे ही है ना. शी इज ऑल्सो लाइक सो फन. शी विल क्वेश्चन व्हेन शी हैज टू क्वेश्चन, वैसा टाइप. तो आई जस्ट लव्ड लाइक हर पर्सनैलिटी व्हेन आई हैड फर्स्ट मेट. तो वैसे रखा था. पर जब हम रिहर्सल कर रहे थे, हमारा रिहर्सल बहुत ही अच्छा हुआ. मतलब वी यूज्ड टू रियली एंजॉय आवर रिहर्सल टाइम टुगेदर. एंड उसमें हमारे काफी कॉन्सेप्ट्स एंड थॉट्स एंड द वर्ल्ड बहुत और क्लियर हो रहा था. तो हमने सोचा कि हम सबका नाम नॉर्मल क्यों रख रहे हैं, सबका नाम राक्षस भी रखते हैं. क्योंकि वो मतलब जैसे इफ यू सी पीपल फ्रॉम साउथ और पीपल फ्रॉम बंगाल, यू विल फ्रॉम द नेम यू विल रिकॉग्नाइज कि दे आर फ्रॉम दैट रीजन. तो हम सोचे व्हाई नॉट कि हम इनमें भी सबका नाम राक्षसों के नाम पे रखे. तो हमने सबका वही नाम चेंज किया except Shweta. So Yuvishka is the name of my daughter. So my daughter was 1 year old, so I used to really miss her so I thought कि अगर वो बड़ी होगी वो बोलेगी यार मम्मी को छोड़ के कहाँ गई. तो ऐसे ये फिल्म में हीरोइन का नाम I have given Yuvishka, so you should be happy. क्या बात है. फिल्म में the fascination with death, I'll tell you why. Because it's a film that questions कि जिंदगी के बाद क्या होता है. और ये क्वेश्चनिंग हो रही है बट जब बाकी जिंदगी ही नहीं रही. तो मुझे ये बहुत पसंद आई. और खास करके जब आपने इतने सारे इंटरेस्टिंग तरीके निकाले हैं लोगों को मारने के लिए. व्हाट इज योर फैसिनेशन? लेट्स आस्क विक्रांत फर्स्ट. विक्रांत, इस फिल्म में अगर आपको याद हो अलग अलग किस्म के डेथ्स हैं. व्हाट्स योर फेवरेट? वो जो बारात आती है, वो एक सीक्वेंस में एक बारात आती है,
वो आप फिल्म में देखेंगे, आपको पता चलेगा। एंड हमने ऐसे कितने सारे किस्से सुने कि हिंदुस्तान की किसी गांव में एक बस खाई में गिर गई और 15 लोग मर गए। जी और तो ये वहीं से इंस्पायर हुआ था। तो एक इस फिल्म में एक बारात, एक पूरी बस आती है बारातियों की, और उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कितनी मेटाफोरिकली आरती जैसे चीजें कहती हैं, बहुत ही सटल तरीके से, बहुत भारी भारी चीजें बोल जाती हैं। तो उस बारात का सीक्वेंस वाज वेरी फनी बिकॉज आई हैड दिस मेगाफोन इन माय हैंड। आई एम लाइक, अरे शांति बनाए रखें, दे आर क्रिएटिंग अ रकस इन माय स्टेशन। एंड ऑल्सो बिकॉज माई कैरेक्टर एज अ डिसिप्लिनेरियन, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उस वक्त। वो आप फिल्म देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। इट वाज हिलेरियस। I have to talk to you guys about that set because एक तरफ mythology means science fiction, but at the same time, this is high-tech technology meeting like almost a retro approach, and that's what I loved about the set. But आरती, मुझे एक scene की बात करनी है जहाँ पर you purposely show Vikrant outside the spacecraft. There's only one scene where he's floating, doing like a gravity. You could have not had that shot, because kahin na kahin, I bought into your story. I said, it's a retro looking spaceship. I love this world. But why do you think that इस फिल्म में बाहर जाना जरूरी था? हाँ, सो मेरे लिए 2 रीजन था। वन वाज दैट कि हम लोग की पूरी फिल्म मोरलेस स्पेसशिप के अंदर है, तो मुझे फर्स्ट 5 मिनट्स में ये दिखाना था कि बहुत कुछ पोर्शंस उस स्पेसशिप के हैं जो कि शायद आप एक्सप्लोर भी नहीं करेंगे, मतलब टू शो दैट इट इज बिगर देन व्हाट यू विल सी। मतलब मुझे वो एक वर्ल्ड में बड़ा करना था। दूसरा एक ये था कि मेरे लिए एक कि मीटियोर स्टॉर्म बाद में बहुत बड़ी चीज हो जाती है जब उनको जीरो ग्रेविटी जाना पड़ता है। तो मुझे बस ये प्लान करना था कि एक छोटा सा मीटियोर आता है तो या कुछ हिट करता है जो आप स्टार्टिंग में देखते हो, तो वो उसको बेसिकली फिक्स करना इम्पोर्टेंट है। तो मतलब वो बड़ी चीज है मीटियोर आना, बिकॉज इवेंचुअली वो मीटियोर स्टॉर्म इज ऑल्सो इन अ वे बाद में मेटाफर बन जाता है कि वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। जब वो उसके अंदर स्टॉर्म आ रहा है तो बाहर भी स्टॉर्म आ रहा है। वो उसको सीरियस बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा मीटियोर स्टार्टिंग में डाला था जिसको विक्रांत फिक्स करने जा रहे हैं, ताकि बाद में जब वो फुल फोर्स में आए तो आपको लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम अरे कहाँ से आई। मतलब ऐसा तब नहीं लगना चाहिए कि हमने प्लॉट कन्वीनियंस में वो प्रॉब्लम डाल दिया। ऐसा लगना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आती रहती है स्मॉलर स्केल में, इस बार बिग स्केल में आई। मतलब वही मेरा रीजन था, लाइक राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। No, it was great because I think कहते हैं ना लिमिटेड बजट के साथ जब आप ऐसी एक फिल्म बनाए, तो these are small things that go a long way in making us believe in that bigger world. And I think that was for me because I was like, yes, he is in space. Oh my god. And मेरे लिए ये एक homegrown Indian sci-fi के लिए एक बहुत बड़ा win है because कौन कहता है कि हम ये चीजें create नहीं कर पा रहे हैं, right? Thank you. So congratulations for that. बिल्कुल कर सकते हैं, absolutely. I know yesterday you went live on your Instagram, before the release of the film, and you were so excited. Wow, ये बहुत बड़ी बात है. This film is coming out on Netflix. मुझे बताओ, what does it mean for? And I ask you to speak on behalf of the entire cast. What does it mean for Cargo to get a Netflix release? For an artist, and by an artist I mean director, writer, musician, everybody who makes that film, I think it's very important. बहुत जरूरी है कि लोग तक पहुंचे। अगर वो फिल्म बना के हम अपनी खुशी के लिए वो कहानी बस हम तक रह जाएगी, then a part of it वो फुलफिल नहीं कर रहा है। वो फुलफिल तभी होगा जब वो अपने एंड तक पहुंचेगा। एंड ऑल्सो आई थिंक बिकॉज ये आरती की पहली फिल्म है, आई थिंक वो आपको जब वो रिलीज इज ऑल्सो क्लोजर, एंड वो आपको अपनी सेकेंड रिलेशनशिप पे जाने के लिए वो आपको पहला वो प्यार से क्लोजर करके उसको गिफ्ट रैप करके देके तभी आप नेक्स्ट पे जा पाते हो। तो अभी हम लोग को बहुत टाइम लगा है विद कार्गो। इट्स टेकन मतलब 2 साल से ज्यादा हो गया है, बट वही होता है कि सब्र का फल मीठा होता है। एंड फॉर एक्टर्स एंड आर्टिस्ट बहुत जरूरी है कि लोग देखें। अच्छा लगे ना लगे दैट्स टोटली ओके, जो भी ओपिनियन होती है लोगों की वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट आई थिंक अगर एक रिक्वेस्ट है जो हम कर सकते हैं किसी से भी, वो ये कि देखो तो चांस तो दो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस आरती बोलिए। नो इट्स सच अ बिग गिफ्ट फॉर अस कि मतलब जैसे नेटफ्लिक्स में आ रही है, आपने देखी, एंड द काइंड ऑफ एनकरेजमेंट जो आप दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। बिकॉज हमने बहुत मेहनत से बहुत प्यार से फिल्म बनाई है, बट जो अप्रिसिएशन आता है इट गिव्स मी सो मच करेज कि मैं आगे जाके और करूँ। वी नीड चैंपियंस लाइक यू। मतलब थैंक यू सो मच फॉर दैट। Oh my God.
not done Yes. anything for this film, but I just want to say, Thank you. You what also a are with so much enthusiasm. That's such a big win for us. Like just one person Yeah. connecting makes a huge difference. Like it makes a huge difference. You have no idea. हाँ हाँ, पहले तो औरत कहानी बोल रही है, दूसरी अपनी दुनिया के बाहर की, कहते आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कहानी बोल रही है. Why you should watch Cargo on Netflix. It was so much fun talking to you guys, It was- and Cargo बस पहुंच जाए It's जहाँ पर always इसको lovely पहुंचना. chatting with you, yaar. It's always lovely. Thank you. So all the Thanks best, a lot. guys. Thank you. Thank you. Thank you.